کو بتائیں کہ لاہور میں ڈینگی مچھر بے قابو ہونے لگا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے مزید 26 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیے سجاد حسین کی رپورٹ۔ برسات کے موسم میں ڈینگی مچھر کا ڈنگ تیز ہو گیا۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 26 کیسز رپورٹ۔ سب سے زیادہ کیسز عزیز بھٹی ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن میں رپورٹ ہوئے۔ رواں برس سب سے زیادہ ڈینگی مریض راوی، نشتر، عزیز بھٹی اور علامہ اقبال ٹاؤن سے رپورٹ ہو چکے ہیں۔ لاہور میں گزشتہ 20 روز کے دوران 91 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ دوسری جانب ڈینگی ٹیموں نے رواں برس 69,073 مقامات سے ڈینگی لاروا تلف کیا۔ ڈینگی لاروا کی موجودگی پر 948 افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ 20 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فیصل ملک نے برسات کے موسم میں خصوصی طور پر احتیاط کرنے پر زور دیا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا مشہود احمد خان کا کہنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز کے زیر اہتمام تعلیمی اداروں کے کردار کے موضوع پر کانفرنس منعقد ہوئی۔ سابق صوبائی وزیر تعلیم رانا مشہود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر رانا مشہود کا کہنا تھا کہ تعلیم کے فروغ میں پرائیویٹ سکولوں کا اہم رول ہے۔ الیکشن فروری 2024 میں ہوں گے۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ یہاں صاحب بالکل ان کی واپسی کی تیاری ہو رہی ہے، بھرپور تیاری ہو رہی ہے۔ پاکستان جس گرداب میں پھنس چکا ہوا ہے، اس سے نواز شریف اور مسلم لیگ نواز ہی نکال سکتی ہے، اور اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے۔ 2 اسٹریٹجیز ہیں۔ ایک ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد لینڈ کریں اور وہاں سے پھر قافلے کی شکل میں ان کو لاہور تک لایا جائے، ایک عظیم الشان اور ایک، کیونکہ قوم کی امیدوں کا محور اب نون لیگ ہے۔ تقریب میں صدر ایپسا شبیر احمد ہاشمی، محمد شعیب خان اور پنجاب بھر کے پرائیویٹ سکول سربراہان نے شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن روانہ ہوں گے۔ مریم اورنگ زیب بھی ہمراہ ہوں گے۔ شہباز شریف لندن دورے کے دوران نواز شریف سے اہم ملاقات کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقاتوں میں نواز شریف کی وطن واپسی کے اہم ترین موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم تمام قانونی امور پر تبادلہ خیال کرے گی، جبکہ ذرائع کے مطابق صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر اور فیصل سیف کھوکھر کو لندن طلب کیا گیا ہے، جو قائد مسلم لیگ نون کی وطن واپسی اور انتظامات کے ابتدائی پلان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نگراں وفاقی وزیر انسانی حقوق خلیل جارج کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو جناح ہاؤس کو جلانے پر قائد اعظم سے شرمندہ ہے۔ اس حملے سے پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ سانحہ 9 مئی ہو یا سانحہ جڑاوالا، اس کی مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ نگران وفاقی وزیر انسانی حقوق خلیل جارج اور ایکس سروس مین ایسوسی ایشن کے صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ خلیل جارج کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا، جناح ہاؤس پہنچا تو عظیم ہستی کا جلا گھر دیکھ کر سر شرم سے جھک گیا۔ قائد اعظم، ہم شرمندہ ہیں، آپ کا گھر جلانے والے زندہ ہیں، انہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ کمشنر کو ہدایت کر دی کہ جڑاوالا میں تمام کرسچن ہفتے بعد اپنے چرچز میں تعمیر مکمل ہونے کے بعد عبادت کریں گے۔ جڑاوالا میں چرچز کو جلایا جائے یا جناح ہاؤس کو۔ اگر ذمہ داروں کو سزا نہ دی گئی تو نوجوانوں کی مزید ذہن سازی ہوگی، جو ملک کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ میں جب جناح ہاؤس پہنچا تو میرا سر شرم سے جھک گیا کہ جس عظیم ہستی نے قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے گھر کو جس طرح جلایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ ایکس سروس مین ایسوسی ایشن کے صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کا کہنا تھا، 9 مئی کو جو تباہی کی گئی سمجھ سے بالا ہے۔ سیاستدانوں کو دھرنا دینے کا حق ہے، لیکن ملکی معاملات میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ جناح ہاؤس پر حملے سے گہرا زخم آیا، جسے بھرنے میں وقت لگے گا۔ میں نے جو کچھ ابھی اندر دیکھا ہے، جتنی تباہی اس جناح ہاؤس کی گئی ہے، یہ بیانڈ آور امیجینیشن ہے، اور میں یہ اپیل کروں گا پوری قوم سے کہ کچھ جو لوگ آ سکتے ہیں وہ آ کے یہ دیکھیں۔ پولیٹیکل لوگوں کے آپس میں ڈفرینسز ہوتے رہتے ہیں۔ آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ بھی کریں، آپ دھرنا بھی دیں، لیکن آپ ملکی معاملات میں مخل نہیں ہو سکتے۔ دونوں وفود نے سانحہ 9 مئی اور جڑاوالا واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سابق صوبائی وزیر اعجاز عالم اگسٹن اور دیگر مسیحی رہنماؤں نے سانحہ جڑاوالا کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیں مبین حیدر کی رپورٹ۔
साबिक सूबाई वजीर एजाज आलम ऑगस्टिन व दीगर की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं ने सानिहा जड़ांवाला की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अफसोसनाक वाक़या मसीही बरादरी के लिए इंतहाई तकलीफ देह है। एजाज आलम ऑगस्टिन ने वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया जाए। सुबह 5 बजे से वाक़या हो रहा है और मुख्तलिफ गाँव से लेकर जहाँ जहाँ उनको चर्च मिलता था वो उसको जला रहे थे और अपनी मर्ज़ी से वो काम, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। कि क्या वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो बर वक्त जो है वो रेंजर को तलब करते ताकि नुकसान जो है कम से कम होता। इस मौका पर दीगर मसीही रहनुमाओं का कहना था कि मसीही बरादरी पाकिस्तान से मोहब्बत करती है। हुकूमत चर्च और नए घर बनाने से पहले मुजरिमों को करार वाकई सजा दे। कैमरामैन फैसल के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। नाजायज़ असलहा और असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 24 घंटों के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 109 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने असलहा डीलर्स की निगरानी और सरप्राइज चेकिंग के लिए कमेटी बना दी। लाहौर पुलिस के शहर को असलहा से पाक बनाने की मुहिम, नाजायज़ असलहा और असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 109 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिमान से 13 राइफल्स, 5 क्लाशनकोफ, 3 पंप एक्शन, 74 पिस्टल्स और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी कहते हैं कि हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश पर जीरो टॉलरेंस कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शरपसंद अनासर के साथ साथ असलहा की तैयारी, खरीदो फरोख्त और सप्लाई की निगरानी भी मजीद सख्त। डीसी लाहौर ने असलहा डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स की निगरानी और सरप्राइज चेकिंग के लिए कमेटी बना दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर शाहिद अब्बास काठिया असलहा ब्रांच के अमूर की निगरानी करेंगे। मुतल्लिका इलाका और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और सिविल डिफेंस ऑफिसर इंस्पेक्शन कमेटी के अरकान होंगे। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि असलहा और बारूद तैयार, फरोख्त और मुरम्मत करने वाले मुकामात का मुकम्मल डाटा मरतब किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा बारूद की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा किया है, एमरजेंसी तोसी प्रोजेक्ट और सराय का इफ्तिताह किया है। मोहसिन नकवी का कहना है कि सेहत के शोबे में पुराने सिस्टम को ठीक करना तरजीह है। चिल्ड्रन हस्पताल में इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें मैसर हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर का दौरा किया। एमरजेंसी तोसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जो 200 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। कमसिन मरीजा महानूर और 9 उम्र मोहम्मद कमर जावेद से फीता कटवाया। इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला ने ORS रूम, आइसोलेशन और दीगर शोबों का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन हस्पताल की सराय का इफ्तिताह भी किया। मोहसिन नकवी की सराय में मुकीम वालदैन से बातचीत हुई, उनसे सहूलतों बारे दरियाफ्त किया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि हेल्थ में कोई प्रोजेक्ट लाने की बजाय पुराने सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। अफगानिस्तान से आए मरीजों का इलाज और लवाहिकीन की रिहाइश का बंदोबस्त मौजूद है। मिलके हम सब अगर काम करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी के साथ हम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। अभी ट्रस्ट ने हमें आगे जी की जो एमरजेंसी का अगला फेज़ है वो भी फैसला किया है कि वो हमें डोनेट करके देंगे और बना के देंगे और 3-4 महीने के अंदर बना के देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अफगानिस्तान से मेरे ख्याल में मैं 8-10 फैमिलीज़ तो मिला हूँ जो अफगानिस्तान से आए हुए लोग अपना इलाज कराने बच्चों का। बाकी KPK से फैमिलीज़ बहुत सारी हैं जो आई हुई हैं और यहाँ पे 100% फ्री इलाज हो रहा है उन सब का। आखिर में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हस्पताल के अक़ब में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। प्रोजेक्ट की मुद्दत तकमील 2025 है। निगरान सूबाई वज़ीर बराए प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर के लाहौर के 4 तहसील हेडक्वार्टर्स हस्पतालों के दौरे, कंसल्टेंट डॉक्टरों की हाज़िरी का रिकॉर्ड तलब कर लिया और डॉक्टर जमाल नासिर ने समनाबाद, सूरीवाल, गाज़ियाबाद और मियाँ मीर हस्पतालों का मुआयना किया है। और डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि महकमा प्राइमरी हेल्थ में नाहल और कामचोर अफराद की कोई गुंजाइश नहीं है। मरीज़ों के इलाज मुआलजे और इन्हें ज़रूरी सहूलतों की फराहमी के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस से काम लिया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन के तहत पंजाब के हस्पतालों में सेहत की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लाहौर के हस्पतालों के बाकायदगी से दौरे करूँगा। 8वीं बैनुल-अक़वामी कलर्स एंड कैम एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया गया। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के स्टॉल सज गए हैं। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी नायब सदर सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ अंजुम निसार ने इफ्तिताह किया।
एक्सपो सेंटर लाहौर में सजी कलर्स एंड कैम एक्सपो 2023। मेहमान खुसूसी नायब सदर सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अंजुम निसार ने मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों के साथ नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उनका कहना था कि निगरान वजीर सनत व पैदावार और गोहर एजाज अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। वजीर आजम समेत सबको सनत की बहाली पर संजीदगी से तवज्जो देना पड़ेगी। खाम माल की किल्लत बहरानी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ने की इतलात हैं जो इंतहाई अलार्मिंग है। बिजली और गैस की कीमतें पहले रीजनल टैरिफ के मुताबिक थीं, अब वो भी खत्म कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्योंकि एक मेन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो ये ऐसे एक्सपोज जो होते हैं वो बेसिकली मुकामी इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इन हालात को ठीक करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ताकि कारोबार हो सके, जॉब्स क्रिएशन हो सके, मुल्क की इकॉनमी रिवाइव करे और मुल्क में इंडस्ट्री लगे। 2 रोज़ा एक्सपो में चीन, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, जर्मनी, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया की 200 से ज़ायद कंपनियों के स्टॉल सजे हैं। सार्क चैम्बर के साबिक सीनियर नायब सदर ख्वाजा खावर रशीद और मुंतजिम नुमाइश राशिद उल हक ने बताया कि इस तरह की नुमाइश का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है। इन हालात में गैर मुल्की कंपनियों का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। नुमाइश से पाकिस्तान की टेक्सटाइल, केमिकल और इससे मुंसलिक सेक्टर्स मुस्तफीद हो सकेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक बड़ी कसीर तादाद में पाकिस्तान की चाइनीज़ कंपनीज़ हैं और थाईलैंड से आई हुई हैं, मलेशिया से आई हुई हैं, यूएई से हैं, ठीक है। पाकिस्तानी हमारे अपने ख़ुद लोकल इंडस्ट्रीज़ के लोग मौजूद हैं। तो ये एक एग्जीबिशन है जिसको आप कहना चाहिए कि इन हालात में और इन वाक़यात में जो इस वक्त चल रही पाकिस्तान के एक इमेज को बेहतर बनाने के लिए एक स्टेप है ये। और इन लोगों का यहाँ पर आना यहाँ पर इस वक्त बहुत ही अच्छा एक साइन है हमारे लिए। ऐसी एक्सपोज को रूटीन में हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए। इससे एक तो ये होता है कि हम बायर हैं, सेलर आपके पास चल के खुद आया है इस वक्त, तो एक तो हमें ना वो कम्पिटिटिव प्राइसेस मिलती हैं। नंबर 2, पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो सामने आता है। लोग जब आएंगे तो देखेंगे जी पाकिस्तान के क्या हालात हैं। चेयरमैन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट पाकिस्तान चैप्टर अब्दुर्रहमान चुगताई समेत बिजनेस कम्युनिटी के दीगर रहनुमा भी शरीक थे। कैमरामैन ज़िशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने हसन न्यासी की बाजियाबी के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जबकि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। अदालत ने हसन न्यासी के वालिद के वकला की मामलत के लिए 25 अगस्त को तलब कर लिया। अदालत ने हसन न्यासी से घर वालों की मुलाकात के लिए पंजाब हुकूमत के वकला को मामलत के लिए मोहलत दे दी। सरकारी वकील के मुताबिक हसन न्याजी को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मफरूर करार दिया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों का हवाला देते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि हसन न्याजी दीगर 102 शहरियों के साथ मिलिट्री स्टडी में है, और जबकि हसन न्याजी को 17 अगस्त को मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले किया गया। ज़मानती मचलके जमा कराने के बावजूद परवेज़ इलाही की गैर कानूनी हिरासत का मामला है। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है, जबकि जस्टिस राहील कामरान ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया है। अदालती फैसले में कहा गया, सरकारी वकील के मुताबिक परवेज़ इलाही की नज़रबंदी 14 अगस्त को ख़त्म हो चुकी है, जिसकी बुनियाद पर कैसरा इलाही की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। अदालत ने आइंदा समात पर परवेज़ इलाही के FIA केसेस में ज़मानती मचलके जमा कराने का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक परवेज़ इलाही की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन 16 जुलाई को जारी किया जाएगा। परवेज़ इलाही के तमाम केसेस में ज़मानत मंजूर हो चुकी थी। 2 रोज़ तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। सरकारी वकील के मुताबिक ज़मानती मुचलके जमा न कराने पर परवेज़ इलाही को रिहा नहीं किया गया था। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल से रिकॉर्ड तलब करते हुए कार्रवाई 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही का लॉ अफसरों की तादाद बढ़ाने का फैसला ख़जाने पर बोझ बन गया। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की तादाद कम और पंजाब हुकूमत में लॉ अफसरों की तादाद 2 गुना ज़्यादा हो गई है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की तादाद 40 है, हुकूमती लॉ अफसरों की तादाद 85 है। 40 जजेस की अदालतों के लिए 22 एडिशनल एडवोकेट जनरल और 63 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल काम कर रहे हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब 6.5 लाख वसूल कर रहे हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल 5,36,000 रुपये वसूल कर रहे हैं, जबकि परवेज़ इलाही ने 10 एडिशनल 20 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की तादाद बढ़ाई थी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जजेस की निस्बत लॉ अफसरों की तादाद में इजाफिया हुकूमती ख़जाने पर बोझ है, जबकि पंजाब हुकूमत को इजाफी लॉ अफसरों की तादाद कम करनी चाहिए।
اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے 100 سے زائد پروسیکیوٹرز کے تبادلوں کے خلاف درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ جسٹس راہیل کامران نے پروسیکیوٹرز کے تبادلوں کے خلاف لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کر دی ہے، جبکہ جسٹس راہیل کامران نے رخسانہ یاسمین کی درخواست پر 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزاروں کے مطابق پروسیکیوٹر کے تبادلوں کا اختیار پروسیکیوٹر جنرل کے پاس ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اپنے دلائل کے حق میں سنگل بینچ کا 2014 کا فیصلہ پیش کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے 2021 کے سنگل بینچ کا فیصلہ پیش کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے 2 مختلف بینچز کے فیصلے ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ تنازع کے حل کے لیے چیف جسٹس لارجر بینچ تشکیل دیں۔ جسٹس راہیل کامران نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کرتے ہوئے لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے نگراں حکومت کو کام سے روکنے کی درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس راہیل کامران نے آفتاب باجوہ کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا، جبکہ تحریری حکم میں کہا گیا کہ سرکاری وکیل نے نشاندہی کی کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری نہیں ہوا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ درخواست پر مزید کارروائی 7 ستمبر کو ہوگی۔ عدالتوں میں میاں بیوی کی علیحدگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور کی فیملی عدالتوں میں روزانہ 10 کیسز خلا کے دائر ہونے لگے ہیں۔ قانونی ماہرین صلاحیت اولین ترجیح دیتے ہوئے محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ میاں بیوی کی ناچاکی اور لڑائی جھگڑوں سے بچوں کا مستقبل تاریک ہونے لگا۔ صبر، قوت برداشت کی کمی سے معاملہ علیحدگی تک پہنچنے لگا۔ فیملی عدالتوں میں خلا کے دعوے دائر ہونے کی تعداد بڑھنے لگی۔ ماہر قانون امرت کا کہنا ہے، میاں بیوی کو اپنے جھگڑوں میں الجھنے کی بجائے بچوں کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری پہلی کوشش میاں بیوی میں صلح کروانا ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ اپنے گھر کے کسی بڑے کو بٹھائیں۔ اگر آپ کا بڑا فیصلہ نہیں کر پاتا، پھر آپ آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ اس جگہوں پہ جائیں جہاں پہ کورٹ کچہری میں بچوں کو گھسیٹ کے ضلالت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ جب ہم لوگ اس طرح کی چیخوں کی آواز یہ پیچھے والے حصے سے سنتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں کہ ہمارا دل خود بیٹھتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق لاہور کی عدالتوں میں روزانہ 10 سے زائد خلا کے کیسز دائر ہو رہے ہیں۔ بچوں کی حوالگی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں روزانہ 50 سے زائد درخواستیں دائر ہوتی ہیں۔ قانونی ماہرین فیملی تنازعات کو عدالتوں میں لانے سے قبل مصالحت سے حل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وکلاء نے پولیس کے چھاپوں کے خلاف سیشن عدالت کی تالہ بندی کر دی۔ سائلین اور پولیس کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ عدالتوں میں سینکڑوں کیسز بغیر کارروائی ملتوی کر دیے گئے۔ دیکھیں نعمان نور کی رپورٹ۔ وکلاء کے گھروں میں پولیس چھاپے، لاہور بار ایسوسی ایشن کا عدالتوں کی تالہ بندی کا اعلان۔ وکلاء نے سیشن عدالت کے داخلی دروازے بند کر دیے۔ پولیس اور سائلین کا عدالتوں میں داخلہ بند رہا۔ ٹرائل کے لیے قیدی وین کو بھی عدالتوں میں نہ جانے دیا گیا۔ وکلاء نے چھاپے مارنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ میرے گھر میں جو پولیس گردی ہوئی ہے، جو تباہی، جو غنڈہ گردی پولیس نے میرے گھر میں کی ہے، سادہ سا ایک قانونی مطالبہ ہے کہ مجھے اس کی FIR چاہیے۔ ہمارا سمپل سا اور اسٹریٹ سا ایک ہی مطالبہ ہے، جیسے ہمارے لاہور بار اور ہائی کورٹ بار کے اجلاس میں ایک بار ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ شام تک ہمارے جو وکلاء بھائی ہیں ان کے گھروں میں جو پولیس گردی کی گئی ہے اس کے اگینسٹ FIR لانچ ہونی چاہیے، جو کہ سٹل ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ ادھر دور دراز سے آئے سائلین بھی پھٹ پڑے، کہتے ہیں وکلاء اور پولیس کو اپنا معاملہ حل کرنا چاہیے، ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں۔ یہ پولیس اور وکلاء کا آپس کا جو بھی معاملہ ہے، اس میں جو بھی ہماری ادھر مائیں بہنیں، ساری لیڈیز بھی آئی ہوئی ہیں، بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، یہ ہمیں جو یہ تنگی ہوئی ہے، صبح 8 بجے کے ہم ادھر آئے ہوئے ہیں اور یہ ٹائم آ گیا، ابھی تک کوئی معاملہ نہیں کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ ہم آئے ہیں ادھر، سارے گیٹ بند ہیں، وکیل صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ہم نے آج عدالت بند کی ہے، اگر یہ عدالت 5-6 دن تک بھی بند رہ سکتی ہے، 2-3 دن کے لیے بھی بند رہ سکتی ہے، جو یہ ہمارے کام دھندا چھوڑ کے مجبور لوگ ہیں، آئے ہیں، کدھر جائیں۔ سیشن عدالت کی تالہ بندی کے باعث سینکڑوں کیسز کی بغیر کارروائی اگلی تاریخیں دے دی گئیں۔ کیمرامین عمیر فضل کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے 3 مرلے پراپرٹی کا 44 سالہ پرانا تنازع حل کر دیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار مرحومہ خورشید بیگم کی 3 مرلے پراپرٹی کا قبضہ دینے کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ 3 مرلے پراپرٹی کا 44 سالہ پرانا تنازع بالآخر حل ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر نے
मरहुमा खुर्शीद बेगम की प्रॉपर्टी के कब्जे की रेगुलर अपील नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। अपील पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि खुर्शीद बेगम ने 1998 में दावा दायर किया कि वो 3 मरले जायदाद की असल मालिक है। उसने 1979 में अपने बेटे के नाम पर जायदाद खरीदी थी। खुर्शीद बेगम के मुताबिक 1998 में इसके बेटे ने रजिस्ट्री चोरी करके प्रॉपर्टी अब्दुल वाहिद को फरोख्त कर दी। फैसले में मजीद कहा गया है कि खुर्शीद बेगम के बेटे मोहम्मद अफजल ने 2010 में अब्दुल वाहिद के खिलाफ दावा दायर कर दिया। मोहम्मद अफजल के मुताबिक 1979 में अब्दुल वाहिद ने धोखे से इससे रजिस्ट्री हथियाई। अदालती फैसले में कहा गया है कि 2011 में ट्रायल कोर्ट ने मोहम्मद अफजल का दावा मुस्तरद करते हुए अब्दुल वाहिद का कब्जा दुरुस्त करार दिया। एपीलेट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार देते हुए 2014 में माँ बेटे की अपीलें मुस्तरद कर दी थी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। निगरान मशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की हॉकी स्टेडियम लाहौर में मंगोलिया हॉर्स रेस में शिरकत करने वाले और नॉर्वे यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात। वहाब की जानिब से खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। मंगोलिया में 1000 किलोमीटर हॉर्स रेस में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों और नॉर्वे यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली स्ट्रीट चाल टीम की हॉकी स्टेडियम लाहौर में आमद। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और निगरान मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहाब रियाज का कहना था कि मंगोलिया की हॉर्स रेस में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद और उनकी मेहनत को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। हमारे वसाइल की कमी है मगर टैलेंट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत भरपूर टैलेंट दिया। अगर हमारी स्ट्रीट फुटबॉल टीम अगर जीत के आई है तो इट वाज नॉट इजी फॉर देम एज वेल, क्योंकि स्किल्स की गेम है। वहाब रियाज का ये भी कहना था कि मंगोलिया में रेस खेलने के लिए उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से कोई खातिर खा मदद नहीं की। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से कोई खातिर खा मदद नहीं की। उन्होंने फुटबॉलर्स के हवाले से गुफ्तगू में कहा कि हम चाहते हैं कि इन्हें इनामात दें, हम इन्हें वज़ीर आला हाउस में भी बुलाएंगे। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड खेलों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता है। जैसे भी हो सका हम खिलाड़ियों की मदद करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को मैं हमेशा ये चीज़ बात करता हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज बड़े कम है, हम लोग प्योरली टैलेंट बेस्ड हैं। और अगर व्हेन इट कम्स टू के सिस्टम, आई थिंक वो सिस्टम क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फर्दर फ्यूचर में हम लोग इनके साथ चलें और इन लोगों को अकोमोडेट करें, और जिधर इनको पंजाब हुकूमत की ज़रूरत हो पंजाब हुकूमत इनके साथ खड़ी हो और इनकी मदद करे। साबिक क्रिकेटर ने खिलाड़ियों की कोशिश को सराहा और उन्हें सर्टिफिकेट भी पेश किए। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। पंजाब पुलिस के 7 एसपीज़ और 35 डीएसपी समेत 42 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। अनवर सईद ताहिर को डिप्टी डायरेक्टर एसपीयू लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि शाजिया सरवर एसपी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच लाहौर तैनात। आसिफ अमीन एडिशनल डायरेक्टर एसपीयू लाहौर लगा दिए गए हैं। अफजल नासिर एसपी सिक्योरिटी रायवन तैनात। मोहम्मद असलम खान एसपी सिक्योरिटी हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। एसपी सदर लाहौर वकार अजीम को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म है, जबकि एएसपी चौंग सिदरा खान को एएसपी सदर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। आईजी पंजाब ने 35 डीएसपीज़ के तबादले भी किए हैं। एलडीए का एसफॉल्ट प्लांट 5 साल बंद और दोबारा फाल कर दिया गया है। अब शहर की गलियों और शाहराहों की बरवक्त कारपेटिंग मुकम्मल हो सकेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 5 साल से बंद एलडीए एसफाल्ट प्लांट फंक्शनल कर दिया। मोहसिन नकवी ने एसफाल्ट प्लांट कंट्रोल रूम का मुआयना किया। डीजी एलडीए ने प्लांट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि एलडीए शहर की सड़कों की मुरम्मत और पैच वर्क खुद करेगा। एसफाल्ट प्लांट 2018 से बंद था। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर दोबारा फाल कर दिया गया। सड़कों की मुरम्मत और बहाली के लिए टीपा एलडीए में M&R सेक्शन कायम कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि प्लांट 5 साल से बंद पड़ा था। 5-6 साल से प्लांट बंद पड़ा था और इस टाइम जैसे आपको पता है कि लाहौर की सड़कें बहुत सारी जो हैं जिन पे सिर्फ छोटा छोटा रिपेयर वर्क होने वाला है, तो वो जब एलडीए से बात हुई तो इनको कहा कि कम से कम ये वाला काम शुरू करें और ये ठेके करने के बजाय ख़ुद करें। इनके पास डिपार्टमेंट भी टीपा का मौजूद है, मशीनरी भी मौजूद है, ये भी प्लांट भी मौजूद था, सब कुछ था। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और डायरेक्टर EME-LDA असद जाफरी ने बताया कि ये प्लांट रोजाना 120 टन असफाल्ट तैयारी की गुंजाइश रखता है। मुस्तकबिल में इससे आमदन भी हासिल हो सकेगी। असफाल्ट का काम बहुत आसान हो जाएगा। आप यहाँ से डंपर निकालें, असफाल्ट बिचुमन लेके आएँ, मटीरियल अपना लेके आएँ और असफाल्ट ले जाएँ जहाँ पे आपने
पैच लगाना आप लगा लें। ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट था जो कि हमने लगाया हुआ है और इर्द गिर्द के इलाके में इस तरह का प्लांट अवेलेबल नहीं है और यही वजह है कि इस प्लांट का ये सीएम साहब के हुक्म पे चलाया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मेट्रो बसों के इंजन जवाब दे गए, बेशतर तकनीकी खराबियों का शिकार हो गए। मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली 64 में से 23 बसें मुकम्मल ख़राब हो चुकी हैं। मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली 41 बसें भी टूट फूट का शिकार हैं। मेट्रो बसों के इंजन जवाब दे गए हैं, बेशतर तकनीकी खराबियों का शिकार हो गए हैं, जबकि मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली 64 में से 23 बसें मुकम्मल ख़राब, 41 टूट फूट का शिकार हैं और मेट्रो ट्रैक पर बसों का मुकम्मल स्क्वाड ना चलने से मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही। LDA की टीमों का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन 22 दुकानें सरबामोहर कर दी गई। LDA टाउन प्लानिंग 3 की टीमों ने मेन मार्केट, गुलबर्ग और फर्नीचर मार्केट में कार्रवाई की है, जबकि पार्किंग की जगह और सड़क पर तजावुज़ात बनाई गई थी। सील की गई दुकानों को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए जा चुके थे। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट बाबू साबू में बड़ी रुकावट। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत की एक्निक कमेटी ने ताहाल मंजूरी न दी। बाबू साबू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम में मुबैना ताख़ीर होने लगी है, जबकि मंसूबे में देरी से लागत में भी इजाफा होने लगा है। देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। शहर लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी में एक और रुकावट हायल हो गई। वफाकी हुकूमत की एक्निक कमेटी से मंजूरी न होने से मंसूबे में ताख़ीर होने लगी है। पंजाब हुकूमत ने बाबू साबू मंसूबे के लिए 8 अरब 90 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी है। पंजाब हुकूमत ने बाबू साबू, गुलशन रावी, बंद रोड प्रोजेक्ट मजीद मंजूरी के लिए एक्निक को अरसाल कर दिया। एक्निक की मंजूरी के बगैर मंसूबे पर तामीराती काम शुरू नहीं किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने 1 माह कबल शहर में मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। बाबू साबू इंटरचेंज से रिंग रोड तक बंद रोड की बहाली का मंसूबा मंजूर किया गया। बंद रोड पर गुलशन रावी टी जंक्शन के मुकाम पर अंडरपास बनाने की भी मंजूरी दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मंसूबे के एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल जारी की। अंडरपास मंसूबे के लिए कुल 4 अरब 84 करोड़ 29 लाख 90 हज़ार रुपए का तखमीना लगाया गया। बंद रोड की बहाली और अंडरपास पर सिविल कंस्ट्रक्शन की लागत पर 3 अरब 87 करोड़ रुपए खर्च होना थे। पंजाब कबीना ने ताहाल दोनों मंसूबों को बजट में शामिल ही नहीं किया। बंद रोड मंसूबे के लिए 10 केनाल 5 मरले अराजी एक्वायर की जानी थी। ताहाल केस महकमा माल को ही न भेजा गया। 2 किलोमीटर तवील कॉरिडोर पर 6 लेन पर मुश्तमिल सड़क तामीर की जानी थी। मंसूबे की तामीर से रोजाना 1,38,960 गाड़ियों को फायदा मिलना था। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। नए असलहा लाइसेंस और उनकी तजदीद की फीसों में 2000% तक इजाफे करने की मंजूरी चैलेंज। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने लाइसेंस की तजदीद और नए लाइसेंस का अमल रोक दिया है। असलहा डीलर नए लाइसेंस की बहाली तक असलहा फरोख्त नहीं कर सकेंगे। महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से लाहौर समेत सूबा भर के 36 डिप्टी कमिश्नर्स को असलहा लाइसेंस की तजदीद ताहुक्म सानी रोकने का मुरासला जारी कर दिया गया। लाहौर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की असलहा ब्रांच में पुराने असलहा लाइसेंस की तजदीद का अमल रोक दिया गया। 5000 पुराने और नए असलहा लाइसेंस की दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हो गयी। पंजाब आर्म्स रूल 2023 के शेड्यूल 1 में तब्दीली की मंजूरी दी गई है। दरख्वास्त गुजार ने मंजूरी महकमा दाखिला पंजाब को दरख्वास्त देकर चैलेंज कर दी। जाती हिफाजत या शिकार के शौकीन के लिए असलहा लाइसेंस की फीस 10,000 के बजाय 50,000 रुपए करना चैलेंज किया गया है। असलहा लाइसेंस की तजदीद की फीस 1,000 के बजाय 5,000 तक बढ़ा दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने दरख्वास्त का मुकम्मल जवाब देने तक असलहा लाइसेंसिंग का अमल रोक दिया। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।